Students, welcome to the second part of Unit 12, that is Organic Chemistry, some basic principles and techniques. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार टॉपिक्स और वो टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप्स, होमोलोगस सीरीज एंड टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से और ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं और वो दो टाइप्स क्या हैं? द टू टाइप्स आर एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड द सेकंड टाइप इज cyclic or closed chain compounds. Now what are acyclic or open chain compounds? जैसे नाम से हमें पता चलता है, these are the compounds which contain an open chain of carbon atoms. This open chain of carbon atoms may contain carbon-carbon single bonds or carbon-carbon double bonds or even carbon-carbon triple bonds. For example, ethane, propane, butane, pentane, hexane, etc., which contain carbon-carbon single bonds, ethene, propene, butene, pentene, etc., which contain double bonds. Similarly, propane, ethane, butane, etc., which contain carbon-carbon triple bond. So this was the first type, that is acyclic or open chain compounds. These compounds are also regarded as aliphatic compounds. Means the open chain compounds or acyclic compounds are also known as aliphatic compounds. And why they are called aliphatic compounds? The word aliphatic comes from aliphatos, that means animal fats. और ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस कैटेगरी के कुछ जो इनिशियली डिस्कवर्ड कंपाउंड्स थे, they were obtained from the animal fats. That is why these compounds are generally regarded as aliphatic compounds. Now the second type is the cyclic or closed chain compounds. अब जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे, नाम से पता चलता है कि इसमें जो कार्बन एटम्स की चेन होगी that is closed. So these are the organic compounds which contain a closed chain of carbon atoms or some other atoms apart from carbon atoms. Now the closed chain of carbon atoms may also contain carbon-carbon single bond or double bond, or in some cases they may also contain some triple bonds. For example, cyclopropane, which contains 3 carbon atoms in a ring. Cyclobutane contains 4 carbon atoms. Cyclopentane contains a ring of 5 carbon atoms, and cyclohexene, here you can see there is a double bond present. So there are 6 carbon atoms and 1 double bond between 2 carbon atoms. So this is cyclohexene. So these are some examples of closed chain or cyclic compounds. They are also called as ring compounds or ring chain compounds. अब ये जो cyclic compounds हैं, they are further classified into two types.
and these two types are homocyclic or carbocyclic compounds and heterocyclic compounds. Now homocyclic compounds, जैसे नाम से पता चलता है, होमो का मतलब होता है सेम. Homocyclic compounds are those compounds in which the ring, chain or the cyclic chain is made up of only one type of atoms. और वो एक टाइप के एटम्स क्या है? These are only carbon atoms. So homocyclic compounds are the ring compounds or cyclic compounds in which the cyclic chain is made up of only carbon atoms. That is why there is another name for these compounds, और वो नाम है carbocyclic compounds, means cyclic compounds containing only carbon atoms. और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन. यहाँ पर आप देख सकते हैं हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन होंगे वो हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. इन ईच केस द वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड बी 4. इस तरह से ये जो साइक्लिक चेन्स हैं आप देख सकते हैं, इन साइक्लिक चेन में सिर्फ कार्बन एटम्स है और कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है. सो दीज आर कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. Now these homocyclic compounds are further classified into two types. एक टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये जो नाम है एलिसाइक्लिक ये निकला है एलिफेटिक साइक्लिक से. जैसे हमने अभी देखा एलिफेटिक जो नाम है इट इज गिवन टू द ओपन चेन कंपाउंड्स. नाउ यहां पर हम जो नाम यूज कर रहे हैं वो है एलिफेटिक साइक्लिक. उन दोनों को मिलाकर बनता है एलिसाइक्लिक. सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट these are the compounds which are cyclic but their properties are similar to the open chain compounds. For example, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane etc., जिनके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं. These are all एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब जो सेकेंड टाइप के कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स. एंड व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन ए बेंजीन ring. Now what is a benzene ring? Benzene ring is a ring of 6 carbon atoms in which there are single and double bonds at the alternating positions, and each carbon atom is attached with one hydrogen atom.
In this way, the formula of the benzene molecule becomes C6H6. अगर हम इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखेंगे, we can write it as this, where there are 6 carbon atoms, ring of 6 carbon atoms, and double bonds as well as single bonds at the alternating position. अब कोई भी कंपाउंड जिसमें ये बेंजीन रिंग हो या जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स हो और बेंजीन रिंग के साथ कोई और ग्रुप अटैच्ड हो, दे ऑल बिलोंग टू दिस कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो नाम एरोमेटिक है ये निकला है एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ऑल्दो इस नाम का मतलब फ्रेग्रेंस का इस वक्त ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, लेकिन जो इनिशियली इस कैटेगरी के कंपाउंड्स जो हमें मिले थे उनमें एरोमा पाया गया था, फ्रेग्रेंस पाया गया था, दैट इज़ वाई दीज कंपाउंड्स आर रिगार्डेड एज एरोमेटिक। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि इस वक्त जो टर्म एरोमेटिक है, इस एरोमेटिक का इस वक्त मॉडर्न टाइम्स में मीनिंग कुछ और है। वो मीनिंग क्या है, एरोमेटिक का कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में आगे चलकर। बट एट प्रेजेंट आप लोग क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं। दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन रिंग, ऑल्दो देयर आर सम other compounds also which are aromatic but they do not contain benzene ring। अब इस तरह से हम aromatic compounds को भी further classify करते हैं दो categories में, और वो दो categories क्या है? The two categories are benzenoids and non-benzenoids। जैसे नाम से पता चलता है, what are benzenoids? Benzenoids are the compounds containing benzene, the compounds which contain one or more benzene rings, they are called as benzenoids, and the compounds which are aromatic but do not contain benzene ring, they are called as non-benzenoids। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखूंगा बेंजीनॉइड्स और नॉन बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड्स में आप देख सकते हैं बेंजीन जो इनका पहला मेंबर है, उसके अलावा नेफ्थलीन आप देख सकते हैं, इसमें दो बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं। देन एंथ्रासीन विच कंटेन्स 3 बेंजीन रिंग्स विच आर ऑल्सो फ्यूज्ड विद ईच अदर। नॉन बेंजीनॉइड्स में कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे ट्रोपोन है। ट्रोपोन में आप देख सकते हैं इसमें जो रिंग है या साइक्लिक चेन है, इसमें 7 कार्बन एटम्स है। मीन्स दिस रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बेंजीन बट दिस हैज बीन फाउंड टू बी एरोमेटिक। और इसमें आप देख सकते हैं एजुलिन में, इसमें 2 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं, दोनों में से एक भी बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाली रिंग में देयर आर 7 carbon atoms and in the second ring which is fused with it there are only 5 carbon atoms. So these two are the examples of aromatic compounds which do not contain benzene, so they are called as non-benzenoids. And these three, and there are also some other examples in which there is at least one or more benzene rings, they are called as benzenoids. Now coming back to the second type of साइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया था साइक्लिक कंपाउंड्स में 2 टाइप्स है, एक होमोसाइक्लिक जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द सेकंड टाइप इज हेटेरोसाइक्लिक। व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक? एज द नेम इंडिकेट्स, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब है दीज आर कंपाउंड्स, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द साइक्लिक रिंग contains different types of atoms. That means there are carbon atoms as well as some other atoms.
and those atoms may be nitrogen, oxygen, sulfur, etc. And these atoms, other than the carbon atom which are present in these rings, they are called as heteroatoms. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, वन ऑफ देम इज फ्यूरान, और फ्यूरान में आप देख सकते हैं देयर आर ए टोटल ऑफ 5 एटम्स इन द रिंग, जिसमें से 4 एटम कार्बन के हैं और 5वां एटम ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन को यहाँ पर हम हेटेरो एटम कहेंगे। दूसरी एग्जांपल हम देखेंगे पायरोल, इसमें भी 5 एटम्स हैं और उनमें से एक एटम नाइट्रोजन है और बाकी कार्बन है। सो नाइट्रोजन इज द हेटेरो एटम इन दिस केस। इन केस ऑफ थायोफीन, you can see that there are 4 atoms of carbon and 1 atom of sulfur in the ring, and in case of pyridine there are 5 carbon atoms and 1 nitrogen atom in the ring. So these are a few examples of heterocyclic compounds. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक फ्लो शीट डायग्राम में समराइज करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स में। क्लोज चेन कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स and heterocyclic compounds. Then homocyclic compounds are further classified into aliphatic cyclic or alicyclic compounds and aromatic compounds. And aromatic compounds are of 2 types, that is benzenoid compounds and non-benzenoid compounds. Now coming on to the second topic of the day, और ये टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक फंक्शनल ग्रुप होता है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that largely determines the chemical properties of an organic compound. मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक हिस्सा है, एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ओवरऑल प्रॉपर्टीज हैं, पर्टिकुलरली केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको लार्जली इन्फ्लुएंस करता है। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली उस पार्ट पे ही डिपेंड करते हैं और जो बाकी का पार्ट होता है उस पर कम डिपेंड करते हैं। सो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। नाउ ए फंक्शनल ग्रुप may contain only carbon atoms, जैसे आप देखते हैं in case of alkenes there is a carbon carbon double bond, and this carbon carbon double bond is responsible for most of the properties of this compound. Or there may be a triple bond between carbon atoms which influences the properties. So alkenes, alkynes which contain double bond or triple bond between carbon atoms, these are some functional groups containing only carbon. Then there are arenes, जैसे आपने देखा aromatic हाइड्रोकार्बन्स में, जहां पर एक रिंग है 6 कार्बन एटम्स की हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स एट द अल्टरनेटिंग पोजिशन। इन कंपाउंड्स को हम जनरली एरीन्स का नाम देते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज अनदर फंक्शनल ग्रुप। नाउ देयर आर several other functional groups which contain some other atoms like halogens or oxygen or nitrogen or sulfur attached with the carbon chain, and these functional groups, out of these functional groups, if alcohols which contain OH group as a functional group, aldehydes they contain C double bond O H group as the functional group, carboxylic acids they contain C double bond O OH, amines contain NH2 as the functional group, similarly sulfonic acids contain SO3H as the functional group, and there are several other functional groups जिनके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। Now the next topic is homologous series.
होमोलॉगस सीरीज क्या है? ये एक सीरीज है consisting of similarly constituted compounds which contain the same functional group and have the similar chemical properties। और इसमें अगर हम देखेंगे किसी भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स को सीरीज में, उनमें डिफरेंस होता है बाय डिफरेंस ऑफ CH2। दिस CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथाइलिन ग्रुप। तो इसका मतलब है कि होमोलॉगस सीरीज जो है ये एक सीरीज है बहुत सारे कंपाउंड्स की जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स, alcohol is a functional group, so there is a series of compounds which contain alcoholic group, that is OH group as the functional group। जैसे हम लिखेंगे जो सबसे पहला मेंबर इस ग्रुप का होगा that will be CH3OH which is called methanol। the second group is CH3CH2OH that is ethanol। आप देख सकते हैं इन दो कंपाउंड्स के बीच में क्या फ़र्क है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? CH2 मतलब मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है। अब अगर हम अगला मेंबर थर्ड मेंबर इस ग्रुप का बनाना चाहेंगे तो हम इसमें एक और CH2 ऐड कर लेंगे। वी विल राइट एज CH3 CH2 CH2 and OH, so it becomes प्रोपेनोल। फिर अगला मेंबर कैसा होगा? अगला मेंबर होगा उसमें एक और CH2 हम ऐड कर लेंगे, एक और मिथाइलिन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन द सेम, इट बिकम्स ब्यूटानोल एंड देन सिमिलरली वी विल गो ऑन एडिंग मिथाइलिन ग्रुप्स। तो इस तरह से जो इसके सक्सेसिव मेंबर्स होंगे वो होंगे पेंटानोल, हेक्सेनोल, हेप्टेनोल, ऑक्टेनोल एंड सो ऑन। सो इस सीरीज को हम कहेंगे होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। इसी तरह से हम होमोलॉगस सीरीज ऑफ अमाइंस बना सकते हैं। हम जानते हैं अमाइंस हैव द फंक्शनल ग्रुप NH2। तो हम कैसे बनाएंगे इस होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स? सबसे पहले CH3NH2 दैट इज मीथेन अमाइन। उसके बाद इसमें हम मिथाइलिन ग्रुप्स ऐड करते जाएंगे और सक्सेसिव मेंबर्स बनते जाएंगे। सो दिस इज इथेनामाइन, देन the next member of the group or the series will be propanamine and so on। So in this way we can form the homologous series of different functional groups or different families containing different functional groups। Now we will discuss about the type of carbon atoms in organic compounds। The carbon atoms in the organic compounds are classified into 4 types, and these 4 types are primary, secondary, tertiary, and quaternary carbon atoms। They are designated like this: primary, secondary, tertiary and quaternary। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन होता है एक कार्बन एटम which is directly attached with one or no other carbon atom। मतलब जो कार्बन एटम किसी एक कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो या किसी भी दूसरे कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड ना हो, इन दोनों को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन? Secondary carbon is the carbon atom
which is directly attached with two other carbon atoms. And similarly, a tertiary carbon atom is attached with three other carbon atoms, and a quaternary carbon is attached with directly with four other carbon atoms. Now, for example, take the case of CH4 molecule. CH4 molecule में सिर्फ एक कार्बन एटम है which is not attached with any other carbon atom. So this is primary carbon according to the definition. अब इस मॉलिक्यूल में बहुत सारे कार्बन एटम्स हैं, हम देखेंगे इनमें से कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन से टर्शरी और क्वाटरनरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन बिकॉज इट इज अटैच्ड विद, डायरेक्टली अटैच्ड विद ओनली वन कार्बन एटम. अब ये जो सेकेंड कार्बन है इट इज secondary because it is attached with two other carbon atoms. Now this carbon atom is tertiary because you can see that it is attached with three other carbon atoms. Similarly हम देखेंगे कि बाकी कार्बन एटम का नेचर. तो आप देख सकते हैं देयर आर सेवरल प्राइमरी कार्बन एटम्स जिनको मैं अभी लेबल कर रहा हूं. दीज आर प्राइमरी कार्बन एटम्स. नाउ दिस कार्बन इन द सेंटर ऑफ दिस कंपाउंड, दिस वन, it is attached with four other carbon atoms directly. So this is a quaternary carbon atom. Now after that the next carbon atom is secondary because it is attached with two carbon atoms. The next carbon is again secondary. So in this compound you can see there are several primary carbon atoms. Secondary, there is one tertiary carbon atom and there is one quaternary carbon atom. तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. तो उस वीडियो के लिए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.